Hello friends, welcome to my channel The Unaccounted. I hope you guys are doing good. So today we are going to cover another important IFRS, IAS 38, which is related to intangible assets. So friends, this AS is very important in our practical life because day in and day out, whenever we see the annual report or the financial statements, we definitely see the intangible assets. So it becomes really very important for all of us to understand that how the company recognize any asset as intangible assets. So in this video today, we are going to cover major important aspects covered by this AS. Number one, if I can summarize it, number one would be my meaning of the intangible asset. Number two would be my recognition criteria, be it in the initial recognition or the subsequent recognition. Then we will cover the how the intangible assets are amortized in the books of account. Then we will touch base upon the applicability of this standard. Like every other IFRS, if there is a separate standard for that asset, then of course those assets will not form part of this standard. And in the last, we will broadly touch base upon the due diligence best practices for the intangible assets. So guys, let's begin. So friends, in order to recognize the intangible assets in our books of account, first of all we need to understand the meaning. So this AS says there is a two-step model to identify intangible asset. Number one is the definition, and number two is the recognition principles. So the definition, if I can summarize it, is broadly there are 5 points which we need to discuss in our meaning of intangible asset. Number first, of course, any intangible asset needs to be an asset first, and by asset I mean the entity has control over that asset because of the past events, and future economic benefits will flow to the entity. Number two aspect is it should be identifiable. Identifiable means it is capable of being separately sold. Means इसकी अपनी एक अलग identity है market में. If I go and sell that asset separately in the market, then it will be sold. Number third is non-monetary asset. Non-monetary asset means whose utilization is not fixed by any sort of contract. कि जहाँ पे जो उस asset को sell करके जो उनको utilization होगा वो कोई fix नहीं है किसी contract के द्वारा. And number fourth is without physical substance. कि जिसका अपना कोई material नहीं है. और यहाँ पे generally what we see that students or professors have a questions like let's say for the software. So software obviously does not have its own substance. However, we generally purchase software in the form of CD or the pen drive. So whether it meets the criteria, yes, it meets the criteria because the AS says that the storage device is not relevant. Okay. And number fifth is the held for use. Of course, if there is a asset, then it must be held for use and not held for sale. So these are the 5 steps or the 5 criteria to identify any asset as an intangible asset. And number 2 is the recognition principle. The recognition principle says it is probable that the future economic benefits will flow in future by use of that asset. Company will generate the future economic benefits, and cost of the intangible assets can be measured reliably. This is very important. The cost which company has incurred to acquire that asset, it can be measured reliably. So this cost aspect we will also cover in the later part as well with regard to the self-generated assets. So these are the two-step model, and if all the conditions are satisfied, then only we can classify any asset as an intangible assets. So I can say in our CA exam, this is the enter and this is the final. So if both the conditions are satisfied, then only asset will be classified as an intangible asset. So let's understand the meaning of intangible asset with some example, so that our concepts will become more clear. So let's say what I have done here, I have classified what we have discussed earlier, like intangible asset must be an asset, it must be identifiable, it is a non-monetary asset without physical substance and held for you. So I have just bifurcated the definition in the column wise, and these are some examples in which we will discuss whether it meets the criteria of intangible asset or not. So our first example is plant and machinery. So plant and machinery is an asset. Yes, it is an asset because it is controlled by the entity.
and future economic benefits will arise to entity by using that asset. Okay. Whether it is identifiable. So identifiable means capability of being separately sold. Yes, it can be sold separately. Okay. Whether it is a non-monetary asset. non-monetary asset में क्या पढ़ा था कि जहाँ पे रियलाइजेशन हमारी फिक्स नहीं थी, अगर मैं बाजार में इसको सेल करने जाऊँ तो एग्जैक्ट मेरे को पता लग जाएगा कि कितने प्राइस में बिकेगा ये. ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकता मेरी प्लांट कितने में सेल होगी. तो यस, इट इज ए नॉन-monetary asset. इट इज हेल्पफुल यूज. ऑब्वियसली मैं प्लांट एंड मशीनरी को अपनी फैक्ट्री में उससे गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, उसको यूज करता हूँ एंड नॉट फॉर द सेल. यस, बट द कंडीशन ऑफ विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, कि क्या इसका कोई अपना सब्सटेंस नहीं है? नो, इसका अपना सब्सटेंस है. तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या होगी? फेल होगी. तो दिस प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट एन इंटेंजिबल, इट इज अ टेंजिबल. ओके. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर. So generally what happens, software as a stock. Let's say a very simple example of Norton Total Health Security software. We all know it's a security software which we have to install in our computer or the laptop or some other system. So whether it is an asset, yes, it is an asset because the owner of the Norton has the control over that asset. Okay, it is an asset. Number two, whether it is identifiable, that means whether it is capable of being sold. Yes, it is. Whether it is non-monetary asset, yes, कि जब हम मार्केट में जाएंगे बेचने हमें नहीं पता कितने का. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इसका जो एमआरपी है, एमआरपी पे बेच देंगे, लेकिन हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जो एसेट हम सेल करेंगे वो एमआरपी पे ही सेल होगी. तो दैट मीन्स इट इज ए नॉन-monetary asset, which means the realization is not fixed by any contract. Okay. Without physical substance, yes, इसका कोई अपना substance नहीं है. And whether it is held for use, no, because it is a stock, so it is held for sale. So this condition will not be satisfied, and this software in the form of stock will not be classified as my intangible asset as per this IUS. Okay. Now let's take another example. The same example, software. However, now the company has acquired the software for use in the day-to-day operations. So again, it is an asset. Yes, it is an asset. It is identifiable. Yes, we can sold separately in the market. Non-monetary asset. Yes, whose valuation is not fixed by any contract. Without physical substance. Yes, and held for use. Yes. So see, all the conditions are satisfied here, and then only this asset will be classified as my intangible asset as per this accounting standard. Let's take another example. Let's say company invested some amount in the form of fixed deposit. So investment in fixed deposit. So it is an asset. Of course, entity has control over the over their fixed deposit. So it is an asset for the company. Whether it is identifiable, yes, it can be separately sold in the market. It has its market value. Whether it is non-monetary asset, think about it. Non-monetary asset means whose realization is not fixed by any contract. However, इन्वेस्टमेंट एक्टिव में तो हमें पता होता है कि जब मैं उसको मैच्योर कराऊंगा बैंक में जाके मेरे को कितने पैसे मिलेंगे. सो दैट मीन्स इसकी जो रिलाइजेशन है वो फिक्स होती है. तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हमारी नहीं होगी. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट माय इंटेंजिबल एसेट में ये नहीं करेगा. ठीक है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. की कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स जो है परचेज कर रखे हैं. तो वेदर इट इज एन एसेट, यस, कंपनी हैज कंट्रोल. कंपनी के नाम पे जो शेयर्स हैं, जो शेयर सर्टिफिकेट है, वेदर इन द डीमैट फॉर्म और इन द फिजिकल फॉर्म, यस, कंपनी की एसेट है. क्या आइडेंटिफाइबल है? यस, हम इसको सेपरेटली स्टॉक मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं. नॉन-monetary asset means whose realization is not fixed by any contract. यस, इसकी जो रिलाइजेशन है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है, क्योंकि वो मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है उस पर डिपेंड करती है. तो आई कैन से ओके, दिस कंडीशन इज आल्सो satisfied. Number 4 is without any physical substance. Yes, इसका अपना कोई substance नहीं होता physical. And whether it is held for use? No. Generally, the investment in shares are held for sale. So this condition is not satisfied, and hence it is also not my intangible assets. So friends, this is the definition of our intangible assets, and I think it is really very logical. What we used to listen from our class teacher during the childhood means class 11 कि भाई जो एसेट को हम देख नहीं सकते वो इंटेंजिबल एसेट होती है. तो हम आंख बंद करके वही सोच लेते करते थे, हाँ भाई जैसे सॉफ्टवेयर है जी, हम इसको देख नहीं पाते, इसको एज ए इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करो. हाउएवर
our IAS says that, our standard says, lays down some criteria and some principles to recognize any intangible asset. So whenever we see any intangible asset in the company's books of account, we have to check whether all these conditions are satisfied by the company or not. Okay, so this is all about the intangible asset. I hope यहाँ तक आपको clear हो गया होगा with this very relevant example. And now we will move on to the recognition principles. Recognition principles, we will cover the initial recognition and the subsequent recognition. So friends, with regard to the recognition, there can be two scenarios. Number one, when we recognize the asset in our books of account at the first time, and other can be when we record in our books of account subsequently. So जब हम first time record करते हैं तो we have to understand, we have to think कि what are the ways, what are the scenarios in which we can recognize our intangible assets. So it can be through the purchase कि हमने कोई asset जो है मार्केट से जाके हमने कुछ परचेज करा है. नंबर टू सिनेरियो कैन बी द एक्सचेंज कि हमने अपनी एक एसेट दी और उनसे इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर ली. नंबर थ्री गवर्नमेंट ग्रांट कि गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट में दे दी. नंबर फोर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, इन द फॉर्म ऑफ अमालगमेशन कि जब हम किसी टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो जो उसकी गुडविल है या जो उसकी और इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो हम कंपनी जो है उसको एक्वायर कर रही है. एंड नंबर फिफ्थ कैन बी द सेल्फ जनरेटेड. सो जो ये पहले चार है मेरे, बीट, परचेज, एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट, अमालगमेशन, ये बहुत छोटे हैं. परचेज में सिंपली क्या चलेगा कि जितना मैंने परचेज प्राइस पे करा है प्लस एनी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्योंकि अगर रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो उनका तो मैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा, तो वो मेरी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे. जो भी मेरे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं वी विल इंक्लूड देम, एंड अदर सम इंस्टॉलेशन चार्जेस और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्रिब्यूटेबल टू दैट एसेट. नंबर टू इज द एक्सचेंज. सो एक्सचेंज मीन्स कि जब मैं एक्सचेंज में अपनी एसेट एक्वायर करता हूँ तो वहाँ पे क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट. नंबर थ्री इज द गवर्नमेंट ग्रांट. तो गवर्नमेंट ग्रांट में हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, एट द कॉस्ट और फेयर वैल्यू, व्हिच आई मीन द कंपनी हैज द ऑप्शन टू रिकॉर्ड एट ईदर एट द कॉस्ट और एट द फेयर वैल्यू. अब यहाँ पे कई बार माइंड में आता है कि भाई गवर्नमेंट किस फॉर्म में हमें इंटेंजिबल एसेट दे सकती है. तो होता क्या है कि जो भी ये एयरपोर्ट कंपनीज होती हैं, राइट, तो इनको जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं हमारे लिए, लेट्स से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो जो एरिया है वो गवर्नमेंट का है, उस पर जो एरोप्लेन्स हैं वो टेक ऑफ भी करते हैं और लैंड भी करते हैं. तो उसके ना राइट्स मिलते हैं एयरलाइंस कंपनी में, जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है. इनको गवर्नमेंट क्या करती है, राइट ग्रांट करती है कि अच्छा ठीक है, आप इस टेन्योर के लिए जहाँ पे अपने एरोप्लेन्स को ऑपरेट कर सकते हो, डेट मीन यहाँ पे अपने एरोप्लेन्स को आप टेक ऑफ भी करा सकते हो और लैंड भी करा सकते हो. तो इसका अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इट इज जस्ट एन राइट. सो वहाँ पे ये इंटेंजिबल एसेट की जो डेफिनेशन हमने पहले करी थी उसको मीट करेगा और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में. नंबर फोर्थ कैन बी द अमालगमेशन कि भाई जिस वैल्यू पे हमने बुक्स में सेलर की जो टारगेट की कंपनी को एक्वायर करा है, जो उसकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है जो हम कंसोलिडेशन में पढ़ते थे, तो उस वैल्यू पे हम अपनी गुडविल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे. कोई और इंटेंजिबल एसेट है भी एट द फेयर वैल्यू उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. नाउ द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द सेल्फ जनरेटेड. सेल्फ जनरेटेड में क्या होता है कि कंपनी ने अपनी कोई कॉस्ट इनकर नहीं करी, कंपनी ने अपनी कोई कॉस्ट जो है इनकर नहीं करी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने कुछ अपने इन हाउस ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इन हाउस ही कोई अपनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, या फिर आई कैन से जो गुडविल होती है कंपनी की, राइट. अब जैसे मैं रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ, टाटा का एग्जांपल लेता हूँ, तो उनकी अपनी गुडविल है, उनकी क्या अपनी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में. ओके, सो और अनदर एग्जांपल कैन बी जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे मस्ट हेड्स होते हैं. मस्ट हेड मीन जो टाइटल होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया या द भारत टाइम्स और द हिंदुस्तान टाइम्स. तो ये क्या है, ये कंपनी की मस्ट हेड्स हैं, जो कंपनी की जो इमेज है लोग इस नाम से उसको क्या है मार्केट में पहचानते हैं, तो एक तरह से गुडविल है उसकी. लेकिन क्या उसको हम किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे, तो एएस कहता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल था, जो सेकंड टेस्ट में हमने पढ़ा था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी एस्टिमेटेड एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कि यहाँ पे जो ये कॉस्ट वाला फंडा है ना, कि जो कॉस्ट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट है हम इसकी कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे. कि जैसे टाटा की अपनी गुडविल है,
टाटा को मोर देन 100 ईयर्स ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है अपना, तो उसने कितने अपने एफर्ट्स लगाए हैं वो कोई भी उसको जो है एस्टिमेट नहीं कर सकता कि कितने कॉस्ट के वो एफर्ट्स लगे हैं। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे कि अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सो द क्रक्स इज any goodwill must have brand which are internally generated, self-generated, are not recognized in our books of account, and the reason is because its cost cannot be measured reliably. Now the second point is सॉफ्टवेयर्स हैं कंपनी के, कुछ अपनी वेबसाइट्स कंपनी ने खुद इन हाउस डेवलप करी हैं। तो अब क्या होता है कि कंपनी जो है इन पे कुछ एक्सपेंस इनकर करती है कि भाई चाहे वो टेक्नीशियन की फीस हो गई, चाहे वो प्रीलिमिनरी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, चाहे कुछ परमिशन हो गई अपना जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की, या किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है हमें, या फिर स्टाफ के खर्चे हो गए, या और भी कोई मेरे रिसोर्सेज हो गए जिसकी वजह से हमें विच आर वेरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट इंटेंजिबल एसेट। तो उसके लिए हमारा एस क्या बोलता है कि द कॉस्ट जो है बेसिकली जो इनकर करनी है कंपनी ने, उसको 2 फेज में वो डिवाइड करेगा। नंबर 1 इज द रिसर्च फेज एंड नंबर 2 इज द डेवलपमेंट फेज। तो रिसर्च फेज क्या होता है बेसिकली, इट इज अ प्लान इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हमें मतलब हम सोचते हैं कि अच्छा यार अब हम ये कुछ डेवलप करते हैं, ठीक है, इंटरनली डेवलप करते हैं, तो दिस इज एस इज ऑल द रिसर्च एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एक्सपेंस्ड ऑफ, डू नॉट कैपिटलाइज इट। And with regard to the development, our AS says capitalize the expenses in the development phase. अब the question है कि डेवलपमेंट क्या होती है। तो डेवलपमेंट के लिए AS ने ना 3-4 क्राइटेरिया दे रखे हैं कि अगर ये क्राइटेरिया मीट होते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंट फेज के अंदर हमारा काउंट हो जाता है। तो जो भी उस फेज के अंदर एक्सपेंसेस हम इनकर करेंगे उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। सो वो सिनेरियो कौन कौन से, नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ द गेन नॉलेज, कि भाई जो हमने रिसर्च फेज के अंदर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी थी उसको हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 इंटेंशन, की मैनेजमेंट की क्या है, इंटेंशन भी बहुत जरूरी है टू डेवलप दैट इंटेंजिबल एसेट। नंबर 3 रिसोर्सेज आर अवेलेबल, कि भाई मेरे को उस एसेट को जनरेट करने के लिए मेरे पास टेक्नीशियन भी हैं, मेरे पास फाइनेंसर्स भी हैं, मेरे को फाइनेंस करने के लिए जो भी कॉस्ट मेरे को इनकर करनी पड़ेगी। एंड नंबर 4 उससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, दैट विल फ्लो टू द organization or to the entity. So whenever these all conditions are satisfied, then only that phase is defined as development phase, and any expenditure which are incurred in that phase are capitalized. कब तक capitalize होंगे, till the asset is ready for use, कि जब तक asset में ready for use होती है तब तक के expense capitalize होंगे, उसके बाद के जो है वो हम capitalize नहीं करेंगे। और ओके, अब एस हमारा एक चीज और बोलता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, चाहे मैं उसको रिसर्च फेज में इंकर करूं, चाहे मैं डेवलपमेंट में करूं, या चाहे मैं कहीं भी करूं, उनको तो हम कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते। ओके, अब बात आती है ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं। सो दीज आर द मेजर एक्सपेंसेस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ रिलोकेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये कुछ एक्सपेंसेस मेरे ऐसे हैं जहां पे एएस बोलता है कि इनको हम ओनली चार्ज टू P&L ऑलवेज, कि विदाउट एनी गिविंग अ थॉट हम उसको स्ट्रेट अवे चार्ज करेंगे P&L में। अब ऐसा नहीं है कि ये हमें क्राइम करना है कि भाई एएस ने बोला तो करना है, इसका रीजन है, इसका लॉजिकल रीजन है। वो क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ स्टाफ ट्रेनिंग को क्या मैं मार्केट में इसको सेल कर सकता हूँ, क्या मैं इसको सेपरेटली सेल कर सकता हूँ, मार्केट में आइडेंटिफाइबल है नहीं। तो जो मेरी एसेट की डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, वो क्राइटेरिया मेरा मीट नहीं करेगा। अनदर एग्जांपल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कि मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनकर कर दिए, क्या उससे मेरे को श्योरिटी है कि मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। लेट्स से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कोचिंग क्लासेस का। तो कोचिंग क्लासेस में जो टीचर्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं स्टूडेंट्स में, तो वो क्या उनसे इसको श्योरिटी मिल जाती है कि मेरे को जिस बच्चे को मैंने पैम्पलेट दिया है वो बच्चा मेरे से आगे बढ़ेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो वहां पे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मेजर नहीं कर सकते, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे पास आएंगे ही आएंगे। तो जो कंडीशंस है हमारी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने की, वो मीट नहीं करती है। तो इसलिए हम इन खर्चों को क्या करते हैं, P&L में चार्ज करते हैं, ना कि कैपिटलाइज करते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्लियर टू गाइस। सो नाउ वी विल डिस्कस द सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सो यहाँ पे आईएएस हमें ऑप्शन देता है कि एंटिटी कैन रिकॉग्नाइज, सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट either at the cost model or at the using the revaluation model. Cost model में क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्ट मॉडल में कोई रिवैल्यूएशन हम नहीं करेंगे, ओनली क्या करेंगे हम
अमोर्टाइजेशन हम करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स की। अब बात आती है कि भाई अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एट एवरी बैलेंस शीट डेट वी विल नीड टू डू द रिवैल्यूएशन ऑफ दैट एसेट। और रिवैल्यूएशन का मतलब है जो हमारी फेयर वैल्यू है वो। अब बात आती है कि फेयर वैल्यू हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड थ्रू द एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट में ये होती है कि जहाँ पे हम एसेट को डायरेक्टली हम सेल कर सकते हैं, उसके बायर और सेलर जो हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। अब बात आती है कि अगर फेयर वैल्यू में और जो बुक वैल्यू है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज है और अगर सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है। अगर सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है तो ऑब्वियसली हम रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, जो बुक वैल्यू चली आ रही है उसको चलने देंगे। और अगर सब्सटेंशियल इंक्रीज है तो हम क्या करेंगे, अपने एसेट को रिवैल्यू करेंगे एट ईच बैलेंस शीट डेट। अब बात आती है कि भाई ये सब्सटेंशियल का मीनिंग क्या है, तो एस इस पे साइलेंट है। सो यहाँ पे हमें भी जो प्रोफेशनल जजमेंट है, वी हैव टू अप्लाई आवर प्रोफेशनल जजमेंट कि हाउ आई मीन इन व्हाट सिनेरियो वी कैन से वेदर देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज और नॉट। लेट्स से फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक एक वेबिनार के लिए एप्लीकेशन है जूम है, वी ऑल नो। तो जब से नाउ वी ऑल नो द लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, तो इससे पहले बहुत कम लोगों को पता था कि ऐसी भी कोई एप्लीकेशन है, तो वो बहुत ही कम सिस्टम्स पे या मोबाइल पे दैट एप्लीकेशन वाज इंस्टॉल्ड। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, जूम की जो डिमांड है वो बहुत इंक्रीज हो गई है मार्केट में। और वो आई थिंक सभी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, चाहे फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो सभी जूम का जो है एक्सटेंसिव यूज कर रही है। तो उससे क्या हुआ, मार्केट में उसकी डिमांड जो है वो एक साथ शूट हो गई। तो ऑब्वियसली जो उसकी फेयर वैल्यू है आज की तारीख में, अगर मैं उसकी वैल्यूएशन करूंगा जूम एप्लीकेशन की, वो ऑब्वियसली मेरी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू माई बुक वैल्यू। तो वहां पे आई कैन से yes there is a substantial increase in my value of asset and we have to recognize our value at the fair value. ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब बात करते हैं कि हमने रिवैल्यू कर लिया तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो उसमें भी अब दो बातें आती हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्स्ट टाइम जो रिवैल्यूएशन होगा उसका कैसे करूंगा और जो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन होगा उसका हम कैसे करेंगे। अगर हमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करा हमने और हमने देखा कि जो मैंने भी एग्जांपल दिया जूम पर कि हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई, काफी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो एएस हमें बोलते हैं उसको कहां पे ट्रांसफर करो, इट सेज दैट ट्रांसफर इट टू द अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, उसे में ट्रांसफर करो। अगर ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू देन वी हैव टू ट्रांसफर इट इनटू द P&L अकाउंट। वहां पे कहां पे ट्रांसफर करना है, P&L अकाउंट में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। अब बात करते हैं कि अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा। तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन के अंदर फिर अगेन दो टॉपिक हैं कि क्या पहले मेरे को गेन हुआ था या पहले मेरे को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर मेरे को पहले गेन हुआ है और अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मैंने करा, क्या अभी भी मेरे को गेन मिल रहा है या अभी मेरे को लॉस मिल रहा है। अगर मेरे को गेन मिल रहा है तो फिर पहले भी मैंने गेन को ओसीए में ट्रांसफर किया था, मैं अभी भी ट्रांसफर कर दूंगा, ओसीए में ट्रांसफर कर दूंगा, अदर कंप्रिहेंसिव में ट्रांसफर कर देंगे। हाउएवर अगर मेरे को इस बार क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ कि अभी जो लिटिगेशन चल रही है, वही एग्जांपल ले रहे हैं जूम का कि भाई ये जो है एप्लीकेशन जो है, जो यूजर्स का डेटा है वो क्या करती है, शेयर करती है किसी और को। तो उस पर लिटिगेशन चली और जो उसकी लोगों को जो है इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी इस पर डाउट होने लगा और लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया नेक्स्ट ईयर। तो क्या हुआ कि मेरी इस साल तो उसकी जो फेयर वैल्यू थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगले साल जब गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया कि आप इस कंट्री में इसको यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उसकी जो यूजर्स है वो कम हो गए। यूजर्स कम हो गए तो उसकी जो फेयर वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई एक साल। तो वही एग्जांपल है कि पहले मेरे को गेन हुआ लेकिन अब मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एएस इज एडजस्ट द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर गेन, कि जितना मैंने पहले अपना गेन ओसीए में बुक किया था और इस बार मेरा लॉस है, लेट्स से ओसीए में मेरा पहले गेन था 100 और इस बार मेरा लॉस है 120 का। तो कहता है कि पहले तो 120 में से 100 एडजस्ट करो ओसीआई को और जो बाद में कुछ अगर बचता है आपका लॉस उसको आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, नाउ द सेकंड सिनेरियो कि पहले मेरे को क्या हो गया, पहले मेरे को लॉस हो गया, लेकिन अब उसमें बात आती है कि पहले मेरे को लॉस हुआ, इस बार भी मेरे को लॉस हो गया, इस साल भी, या इस साल में क्या हो सकता है, गेन हो सकता है। पहले भी लॉस हुआ तो हमने कहां पे ट्रांसफर किया था, P&L में। अगर इस बार भी लॉस होगा तो ऑब्वियसली P&L में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। लेकिन पहले मेरे को हुआ लॉस, डिक्रीज हुआ वैल्यू, लेकिन अब मेरी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब मेरे को गेन हो गया। तो ए से
दैट गेन विल बी ट्रांसफर टू द P&L टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, और कोई अगर बैलेंस अमाउंट बचती है तो देन वी विल ट्रांसफर टू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल कि मैंने जब पहले एसेट को रिवैल्यू करा तो मेरे को पता लगा कि भाई इसकी जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की वजह से मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू कम हो गई है, और मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 80 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। अब क्या हुआ, मैंने उस पर थोड़ा कुछ अपना एडवांसमेंट करी, उस पर काम करा, और उसकी जो यूजेस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, दोबारा से जो क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई उसकी, तो मेरी जो फेयर वैल्यू अगले साल इंक्रीज हो गई, और उससे मेरे को जो गेन हुआ, जो रिवैल्यूएशन का मेरे को गेन हुआ, वो हुआ मेरे को कितना, लेट्स से 120। ठीक है। तो ये से कि भाई जितना पहले मैंने 80 चार्ज किया था P&L में, पहले तो आप उससे एडजस्ट कर दो 120 को, तो 120 माइनस 80, और जो बैलेंस जो 40 बचता है उसको आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एंड आई थिंक यू विल अप्रिशिएट दैट अगर आप PS की लैंग्वेज पढ़ोगे, you will find it rather difficult to understand, but we have tried to illustrate in a very simple chart formation so that it becomes very clear and for our learning aspect. I hope you guys will understand this concept of recognition, initial recognition and subsequent recognition. So now let's talk about the amortization और impairment. अभी तक हमने अपनी एसेट को अपनी बुक्स में डिफाइन कर लिया कि क्या मेरी इंटेंजिबल एसेट है, और फिर मैंने उसका रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल देख लिया कि मैं अगर इनिशियली बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, और सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। उसके बाद आती है कि जो हमारी एस बोलता है कि उसको हमें अमोर्टाइज भी करना है, एंड वी हैव टू टेस्ट फॉर द इम्पेयरमेंट एज वेल। अब यहाँ पे दो बात आती है कि जो मेरी इंटेंजिबल एसेट है, अगर उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो क्या है, मेरी फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट मतलब सर्टेन है, डिफाइन है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। और अगर if my useful life of the asset is infinite, means we cannot measure the useful life of the asset, then what will be the treatment? So the AS says if the useful life cannot be determined, then of course we cannot amortize it, because amortization में क्या होता है कि हम अपनी उस एसेट की वैल्यू को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, अमोर्टाइज करके चलते हैं, अपनी बुक्स में P&L में चार्ज करते हैं। जब हमें वो अपनी यूजफुल लाइफ ही नहीं पता हमें कितनी है, तो ऑब्वियसली हम चार्ज नहीं, अपनी बुक्स में उसका अमोर्टाइज नहीं कर पाएंगे। हाउएवर AS mandate that we have to annually test for the impairment testing, कि जो impairment testing के जो indicators हैं वो हमें टेस्ट करने हैं हमेशा at each balance sheet date, और अगर हमें लगता है कि कुछ impairment होनी चाहिए, then of course we have to do the impairment of for that particular asset. Now comes the finite useful life, कि अगर मेरी जो useful life है अगर finite है, तो of course we have to amortize over the useful life of the asset, and we have to check for the impairment. अब यहाँ पे बात आती है कि यूजफुल लाइफ को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। सो एएस ने 4-5 फैक्टर्स दे रखे हैं, पैरामीटर्स दे रखे हैं, कंसीडरेशन दे रखी है, जिसके बेस पे हम यूजफुल लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1 कैन बी द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो कितनी है, या और फैक्टर क्या है उसको अफेक्ट कर सकते हैं हमारे। इट कैन बी द टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस में मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऑर्कुट का। वी ऑल नो इन द अर्ली 2000 ऑर्कुट वाज वेरी पॉपुलर, लेकिन जैसे जीमेल आया, फेसबुक आया, जो ऑर्कुट है वो उसका जो इट वाज टोटली वेनिस्ड, मार्केट से पूरा वेनिश हो गया वो, तो वो क्या हो गया, ऑब्सोलेंस हो गई, मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो रही नहीं हमारे पास, तो वो में क्या हो जाएगा, उसके लिए हम इम्पेयरमेंट करेंगे। और या फिर जो उसकी लेट्स से उस टाइम पे यूजफुल लाइफ हमने 10 ईयर्स मेजर करी थी कि भाई अभी आने वाले 10 सालों तक रहेगी, लेकिन पता लगा अगले 2 साल में जीमेल आ गया, फेसबुक आ गया, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेरी कम हो गई। Another factor which we need to consider is the change in the market demand, जो भी हमने अपनी प्रीवियस उसमें देखा था, जूम का एग्जांपल लिया था कि भाई जूम एप्लीकेशन की डिमांड अब बहुत बढ़ गई है, तो अगर मार्केट डिमांड मेरी इंक्रीज हो गई है तो उससे भी यूजफुल लाइफ जो है मेरी इम्पैक्ट हो सकती है। या फिर अगर कोई जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो मेरे सेम बिजनेस में हैं, उनके कुछ अगर एक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है या जो मेरी यूजफुल लाइफ है उस एसेट की, अगर उस पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, देन अगेन आई हैव टू कंसिडर इट। So basically, the crux is at each balance sheet date, the entity has to determine, has to reconsider its useful life of the asset, कि भाई आज की तारीख में मेरी यूजफुल लाइफ क्या हो सकती है इसकी, ठीक है। और दूसरा इसमें बात आता है कि जो मेरे अमोर्टाइजेशन के, जब मैं अपनी बुक्स में अमोर्टाइज करता हूँ तो एएस आल्सो गिव्स अस द ऑप्शन कि हम उसको किस रेशियो में अमोर्टाइज कर सकते हैं, इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेट्स से मेरी यूजफुल लाइफ है 5 साल की, लेकिन 5 साल में मेरे को जो फ्यूचर बेनिफिट्स अराइज होंगे वो होंगे इन द रेशियो ऑफ 100:80:70
1:70, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 210, 290, 390। तो टोटल मतलब फर्स्ट ईयर में मैं कितना उसको अमोर्टाइज करूंगा। लेट्स से मेरी एसेट की वैल्यू है 10 lakhs, ठीक है। तो 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 390। कहने का मतलब कि मैं यूजफुल लाइफ जो है एसेट की मेरी उसमें अमोर्टाइज करूंगा, लेकिन किस रेशो में। या तो मैं स्ट्रेट लाइन करूंगा भाई 10 lakhs डिवाइड बाय 5, 2 लाख 2 लाख 2 लाख ईच एंड एवरी ईयर। लेकिन अगर मेरे पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल है, कंपनी मेजर कर पाती है, तो हमें इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपनी एसेट्स को अमोर्टाइज करना होगा, ठीक है। नाउ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटायरमेंट कि भाई अगर मैंने अपनी जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो मेरी क्या होगी, मैंने डिस्पोज कर दी। डिस्पोज हम किस केस में कर सकते हैं, या तो मैं उसको सेल कर दूंगा, या उसकी जो मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो गई, मतलब उसका आज के टाइम में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रही, तो उसके लिए जो भी मेरी रेजिडुअल वैल्यू है, जो भी मेरी रिलाइजेबल वैल्यू है और जो भी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है, उनका जो डिफरेंस है वो मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बुक वैल्यू का मतलब है नेट बुक वैल्यू, दैट मींस आफ्टर कंसीडरिंग माय अमोर्टाइजेशन एंड रिपेमेंट, ओके। तो जो भी मेरा डिफरेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, P&L के हम इसको ट्रांसफर करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मेरा कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि ऑल्दो जो भी एसेट्स हमारी which meets the definition of intangible asset as per IAS 38, however which are however is not part of this AS। जैसे अगर मेरी इंटेंजिबल एसेट क्या है, हेल्थ फॉर सेल, कि भाई मैंने उसको हेल्थ फॉर यूज ना लेके, अगर लेट्स से मेरा गोइंग कंसर्न पे कुछ इम्पैक्ट आ गया, तो मैंने उसको जो है सेल पे लगा दिया अपने सेट को, तो मेरा कहाँ पे कवर हो जाएगा, IAS 2 में कवर हो जाएगा, तो मैं उसके बाद IAS 38 में नहीं करूंगा। नंबर 2, डेफर्ड टैक्स एसेट। ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स एसेट में मेरी कंट्रोल है, मेरी जो एसेट है एंटिटी की, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, और तो इसलिए और मेन इंपोर्टेंट है इसका जो अलग से IAS है इसके ऊपर IAS 21, तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट से अनदर एग्जांपल इज लीजेस। लीजेस के लिए हमारे पास अलग से IFRS 16 है, तो दैट मींस इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ माय IAS 38। अनदर इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो हमने प्लान एसेट्स, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि IAS 19 के अंदर जो मेरी प्लान एसेट्स हैं टू मीट माय प्लान ऑब्लिगेशंस, तो वो मेरी ऑल्दो है तो इंटेंजिबल एसेट, लेकिन वो इस IAS का मेरा पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे पास। देन गुडविल एक्वायर्ड इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, कि अगर मैंने कोई बिजनेस परचेज करा है और उससे मुझे क्या मिली है, गुडविल मेरे को उस केस में अराइज हुई है, तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है मेरा IFRS 3, सो हम उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। देन अगेन फाइनेंशियल एसेट, अगेन अ सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर दिस IFRS 9। एंड इन द लास्ट E&G एसेट, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में जो हमारी एसेट होती हैं, उसके लिए भी IFRS 6 अलग से है, तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो द क्रक्स इज कि जिन भी एसेट के लिए हमारे पास अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन है बाय IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसकी बातें हम अपने IAS सर्टिफिकेट के अंदर हम नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल कवर व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस which we can apply in our due diligence with regard to the intangible assets. So like I mean it is not a very different topic। जो अभी हमने IAS पढ़ा था, जो हमने स्टडी करा था, उसी का ही हमें चेक करना है कि क्या टारगेट में, सेलर में जो पॉलिसीज है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, वेदर दोज पॉलिसीज आर इन लाइन विद द IAS 38 और नॉट। लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, कि जो हमारा टारगेट है उसका अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या है, कि क्या वो SLR भी फॉलो कर रहा है या यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट पे वो कर रहा है। अगर वो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट पे उसको अमोर्टाइज कर रहा है, सो वी कैन चेक कि जो यूजफुल लाइफ है एसेट की, हाउ द सेलर हैज डिटरमाइंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एंड हाउ यू नो टारगेट हैज एस्टिमेटेड द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि उसने क्या बेसिस पे एस्टिमेट करा कि आने वाले सालों में मेरे को इतना बेनिफिट मिलेगा उस पे। Another important aspect which we need to cover is the impairment testing। तो जनरली होता क्या है कि जो टारगेट है उसका लेट से मेरा जो पीरियड है वो एंड हो रहा है जनवरी टू दिसंबर, और जो ट्रांजेक्शन हैपन हो रही है मेरी मर्जर एक्विजिशन की, वो भी लेट से इन द मिडिल ऑफ द ईयर, लेट से ऑन द 30th ऑफ सितंबर। सो जो ऑडिट अभी बुक्स का नहीं हुआ है हमारे पास, जो फाइनेंशियल हमें मिलेंगे जनवरी टू सितंबर, वो कैसे मिलेंगे हमारे पास, अनऑडिटेड। सो वहाँ पे हमें चेक करना होता है कि क्या एनी इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग यू नो आर एप्लीकेबल ऑन दोज टारगेट इंटेंजिबल एसेट और नॉट। लेट्स से
कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिडेंस हो गई, ठीक है, और उसकी जो इंडिविजुअल एसेट से मेरी 10 मिलियन की बुक्स में आती थी, 10 मिलियन यूरो की, और आज की तारीख में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू हमारी जो है बहुत कम हो गई। तो क्या जब एज अ बायर मैं उसको 10 मिलियन पे एक्वायर करूंगा? नहीं, मैं उसको किस वैल्यू पे एक्वायर करूंगा? फेयर वैल्यू पे। तो मेरे को उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। सो वी हैव टू चेक फॉर द इम्प्लीमेंट टेस्टिंग एज वेल। And another important aspect which we need to cover from the transaction diligence point of view is for assets which are under the development phase. Let's say another example कि जो टारगेट है वो किसी अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई अपना वेबसाइट बना रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है और उसका अभी वो डेवलपमेंट फेज अभी चल रहा है। सो लेट्स से अगेन सेम एग्जांपल कि मेरा जो ईयर एंड हो रहा है वो Jan to दिसंबर है और अभी दिसंबर में वो पूरा एसेट अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इट इज कमिंग एज माय इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट और वो लेट्स से फरवरी में जाके कंप्लीट होगा। तो वो क्या हो सकता है कि जो सेलर है, ये जो टारगेट है, व्हाट दे कैन डू, दे कैन रिक्लासिफाई द रिसर्च एक्सपेंसेस इनटू द डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। व्हाई सो? ताकि डेवलपमेंट फेज के जो एक्सपेंसेस है वो मेरे क्या होते हैं, कैपिटलाइज हो जाते हैं और वो मेरे बिलो एबिटा आते हैं, क्योंकि एबिटा स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन मेरा नीचे आ जाएगा। तो जो भी मेरे खर्चे हैं, जो रिसर्च एक्सपेंसेस मेरे आइडियली क्या होने चाहिए थे, P&L में चार्ज होने चाहिए थे, अबव एबिटा मेरे आने चाहिए थे वो, तो वो अगर मैं उसको डेफर कर दूंगा, तो कैपिटलाइज कर दूंगा, तो मेरे कहां पे चले जाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो जो कंपनी का एबिटा है it will automatically increase. तो we have to check from the DD professional कि क्या सेलर ने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं कर रखी, ठीक है। Another important aspect which we need to cover, like the definition of intangible asset says that intangible asset means it will increase the future economic benefits flow to the entity, कि जिससे मेरे एंटिटी के जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब लेट्स से मेरी लास्ट ईयर में कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं थी टारगेट की बुक्स में, इस ईयर में मेरी आ रही है। तो व्हाट वी कैन डू, we can compare both financial statements, like financial statements before the intangible assets and financial statement after the intangible asset, और उसमें हम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि भाई हमें बताइए कि इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हुई है तो क्या वो इसकी वजह से हुई है या नहीं हुई है। अगर लेट्स से मेरा ड्यू टू इंटेंजिबल एसेट कोई रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं मेरे को दिख रही है या जो मेरे एक्सपेंसेस भी कम नहीं हो रहे हैं, तो दैट मींस कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें उस एसेट से डिराइव नहीं हो रहा है। तो अगेन वी हैव टू रीअसेस और हमें उसकी फेयर वैल्यू में भी अपनी बुक्स में एक्वायर करना होगा। सो फ्रेंड, दीज आर द की कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर द एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज द इंक्लूसिव लिस्ट। Any other relevant factors can be there depending upon the transaction to transaction, but I think these are very common I can say the scenarios which we have to determine, which we have to check as a DD professionals. I think this concept is also clear to you guys. So friends, this was all about our IAS 38 intangible assets and our due diligence best practice. I hope you like this video and your concept regarding the intangible assets are more clear now. As always, in case of any query or in case of any questions, please feel free to connect with me at my mail ID ca.tarunbhardwaj99@gmail.com. It is also mentioned in my description box as well. And thank you. Stay safe. Bye bye.